बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर विदेशों से चंदा लेने का एक बार फिर आरोप लगाया है। बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि आम आदमी पार्टी को चंदे का पैसा डच एम्बेसी से मिले हैं। एम्बेसी से पैसा आया है, अब हो सकता है उनके सहयोग के पास गया है, वो एक आम पार्टी में नहीं गया, परंतु आम पार्टी के जरिए पैसा डाइवर्ट हो सकती है। ये तो अब अन्ना हजारे खुद कह रहे हैं। तो ये हम पूछना चाहते हैं, ये सारी डच एम्बेसी क्यों देगी? एम्बेसी पैसा देना ये बड़ा आश्चर्यजनक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। कश्मीर को लेकर जिस तरीके का बयान लगातार इस पार्टी के नुमाइंदों से, खासतौर पे प्रशांत भूषण और तमाम लोगों से है, जो कि देश की अखंडता को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने इससे पहले भी आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी को आवाज.org नाम की एक संस्था ने बड़ी फंडिंग की। इस संस्था ने आपको $4 लाख दिए। इससे पूर्व सुब्रमण्यम स्वामी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए उस पर आरोप लगाया था कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर काम कर रही है। बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी के रडार पर लगातार बनी हुई है अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। Big breaking news coming in this hour. The Delhi High Court has found the BJP and the Congress party, the two principal parties of the country, guilty of taking foreign funding and violating the Foreign Contribution Regulation Act. Well, the Congress and the BJP have been found guilty of taking funds from Vedanta subsidiaries, is what our information is. The High Court noting that Vedanta has benefited from the two parties. So, huge landmark judgment from the Delhi High Court, which has asked the Home Ministry to take action against the BJP and Congress within 6 months. The petitioner in that case relying upon the annual report of Vedanta Resources, which is headquartered in England and Wales. Arunima brings us his news, joining us now on the phone line. Arunima, a huge and landmark judgment by the Delhi High Court. How do we see this play out now? Well, we just checked with the Ministry of Home Affairs as to what the next course of action will be, and their standard response is that they'll have to see the order in detail and only then can they come up with a reaction. But that Delhi High Court order very specifically says that some of the contributions made to the student wing of Congress Party, which is NSUI, and also to the Bharatiya Janata Party are within the ambit of FCRA, and therefore the fact that these parties accepted foreign donations is a violation of FCRA. The Delhi High Court order therefore instructs the Ministry of Home Affairs to reassess the donations that have been given and accordingly holding them as violation of FCRA, take action against these two parties. Now, obviously, the option of going to the Supreme Court in appeal against this judgment remains, but the psychological or the moral victory of this order will be immense, especially for the Aam Aadmi Party, into whose foreign contribution Home Minister Sushil Kumar Shinde had ordered an inquiry, and that matter is also pending in Delhi High Court. All right, Arunima, we'll leave it there for the moment. Now, in a huge relief to Arvind Kejriwal and his Aam Aadmi Party, the government today informed the Delhi High Court that it had found no evidence against the Aam Aadmi Party in its probe over allegations that the party had received offshore funds in violation of the Foreign Currency Regulation Act provisions. The counsel appearing for the Home Ministry told the court that the Intelligence Bureau report has found nothing against the party. The court, however, directed the government to file a fresh status report in a sealed cover regarding its findings in the matter. Vindicated Aam Aadmi Party has now demanded an apology from the BJP for questioning the funding of the party. Let me go straight to our correspondent Ankit Tyagi, who tracks the Aam Aadmi Party for us. Ankit, is this the end of the matter? Because it was raised right through the election campaign. There were allegations the BJP made about the Aam Aadmi Party's funding. Has this effectively put an end to that entire controversy? Well, as far as the Aam Aadmi Party is concerned, Rajdeep, they feel that it's a vindication of their stand. They have been saying that it's now the centre and the BJP, in fact, should come out and say why were these allegations made when in the court they gave a clean sheet to the Aam Aadmi Party. So as of now, politically, the party is not going to let it go. They are going to utilise it despite the massive victory. They will still go ahead and, probably do a press conference tomorrow and ask an apology from the centre and the entire BJP for running a campaign against the party, and once again will demand an SIT to probe the funding of Congress and the BJP. और अब सीरियस न्यूज, आपने सुना होगा कि भारत में बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश आ रहा है। विदेशी निवेश आने का रास्ता कौन आसान करता है? जाहिर है वो हमारे यहाँ के राजनीतिक दल करते हैं। अब इतना तो बनता ही है कि जो वहां से आए उनके यहां भी आए।
2 साल पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने एक विदेशी कंपनी से चुनावी चंदा लेने के मामले में बीजेपी और कांग्रेस को दोषी पाया था। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से कहा था कि इन पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं होता देख इन दोनों दलों ने विदेशी चंदे के लिए एक नया रास्ता बना लिया। यह स्टोरी इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप भी समझ सकें कि कांग्रेस और बीजेपी में सिर्फ झगड़ा ही नहीं होता है। इसलिए आप इन दोनों को लेकर सिर्फ झगड़ा ना करें, कुछ मिलजुल कर कमाने का जुगाड़ भी करें। आप में भरोसे का निवेश तो कर ही सकते हैं आपस में। ग्रीन पीस, फोर्ड फाउंडेशन और तीस्ता सीतलवाड़ की एनजीओ समेत कई गैर सरकारी संगठनों पर एनडीए सरकार के वक्त में कार्रवाई हुई है। ज्यादातर को या तो अपना काम बंद करना पड़ा या पैसा मिलना बंद हो गया। सरकार ने इन तमाम एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत की, जो विदेश से पैसा लेने के नियम तय करता है। लेकिन जहां तक राजनीतिक पार्टियों का सवाल है, उनके लिए विदेशी चंदा लेना बिल्कुल मना है, यानी उस चुनाव में भी किसी भी तरह का पैसा नहीं ले सकते। फिर भी वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बजट में चुपचाप एक ऐसा संशोधन ला रहे हैं जो कांग्रेस और बीजेपी के पिछले कुछ सालों में लिए गए विदेशी चंदे को न केवल जायज बनाएगा, बल्कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए रास्ता खोलेगा कि वो कभी भी विदेश से पैसा ले या कोई भी विदेशी कंपनी उनके चुनाव प्रचार में फंडिंग कर सके। उधर गैर सरकारी संगठनों का कहना है कि सरकार एनजीओ और राजनीतिक पार्टियों के लिए बिल्कुल अलग अलग पैमाने बना रही है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। बड़ी अजब स्थिति है। एक, अगर आप एनजीओ हैं जो आम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो आपकी फंडिंग पर रोक लगा दिया जाएगा, आपको तरह तरह से इस FCRA कानून के तहत रोक दिया जाएगा। दूसरी तरफ आप पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्लियर वायलेशन भी करें, उसके बावजूद आप आराम से काम करते रहें। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने चुनाव में विदेशी कंपनी से पैसा लेने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और वहां ये मामला अभी चल ही रहा है। लोकसभा में सरकार के पास बहुमत है, इसलिए इस संसद में वित्त मंत्री अरुण जेटली को बजट में इस संशोधन को पास कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन असली सवाल और असली टेस्ट नैतिकता का है, जहां कांग्रेस और बीजेपी इसी संसद में एक दूसरे पर बेईमानी का आरोप लगाते हैं, खुद को दूसरे से ज्यादा पाक साफ बताते हैं, वहीं वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक साथ हैं, यानी हाथी के दांत दिखाने की ओर, खाने की ओर। खाने के दांत वैसे भी दिखाए नहीं जाते, मिलकर खाए जाते हैं। यही फोटो आपको समझना है लाइफ में कि कांग्रेस और बीजेपी को लेकर आपसी संबंधों को आप इतना ना बिगाड़ें कि आप एक दूसरे को बर्दाश्त ना कर पाएं। जरूरी है कि दोनों की नीतियों की आलोचना, तारीफ करते हुए आप जनता बने रहिए। समर्थक बनने की जल्दी में इस तरह की गलतियां और अविश्वास ना बढ़ाइए, वरना आप जितना इन कांग्रेस और बीजेपी को नहीं समझ पाते हैं, उससे कहीं ज्यादा बेहतर ये विदेशी कंपनियां इन दोनों पार्टियों को समझती हैं, जो एक ही कंपनी दोनों को चंदा देती है। और इसलिए भाइयों बहनों, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है तो गुनाह हमें भी मंजूर है। अगर विदेशी धन वापस लाओ ये मांग करना गुनाह है तो वो गुनाह हमें भी मंजूर है। और जो कानूनी सजाएं आप रामदेव जी को करते हो, नरेंद्र मोदी पर भी लगाई दीजिए। भाइयों बहनों, ये देश ऐसे नहीं चल सकता, ये देश ऐसे नहीं चल सकता है। आपके मतभेद हो सकते हैं रामदेव बाबा के साथ, मंत्री जी का भाषण, रामदेव बाबा रातों रात खड़े नहीं, वो 2 साल से गांव गांव जाकर के इस विषय पर लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। अच्छा, किसी ने कहीं से पैसे लेने में बड़ी दिक्कत होती है, हमारे पकड़े नहीं गया। बात करो, बड़े हो गया, यहाँ मत सुना आपने योग गुरु रामदेव क्या कह रहे हैं? काले धन के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाले रामदेव काले धन का ही बचाव कर रहे हैं। मेरे कांकेर के भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से 1-1 रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार
ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये। चुटकुले साहब, जनता को जगाने का वक्त आ गया है। इनको मत जगाओ, ये किसी जरूरी काम से सो रहे हैं।